A very good morning, students. How are you? I hope all of you are fine. So, welcome to my new video. In this video, we are going to learn about the third part of this lesson. And this lesson is very long. That's why there are four videos of this lesson. Okay. So, what we have seen in the first video, there are some new words and their meanings, and we have understood the meanings of these words there. Okay. Then there are some dynasties. We have seen the name of these dynasties are there. Okay. Then after this there were we have seen about the sources for the Sultanate period. After this we have solved the MCQs also. Then the slave dynasties, we have seen about the slave dynasties, and the after this we have seen the rulers from that dynasty, Shamsuddin Iltutmish and the Kutubuddin Aibak. Okay. After this we have seen about Razia Sultan. Okay. She was the lady sultan, lady ruler. Then after her we have seen about the Ghiyazuddin Balban. Then qualities for becoming a sultan. This topic we have seen in the second video. Okay. Then we have seen the Khilji dynasty. Before this we have solved the MCQs also. Okay. And in Khilji dynasty there were two rulers, Jalaluddin Firoz Khilji and then Alauddin Khilji. After this we have seen about the expansion of the empire. Then in the second video we have seen about the reforms in the army. Okay. Then economic measures of Alauddin Khilji. Now in this video we will see about the next topic, the Tughlaq dynasty. Okay. So you should take your SST textbook and open your page number 30. Okay. The Tughlaq dynasty ruled for nearly 100 years, and ये जो तुगलक डिनेस्टी थी यहाँ पे इन्होंने कितने साल रूल्स किया? 100 years. And you know what is mean by dynasty? The series of rulers in the same family, that is called the dynasty, Rajgharana, Rajvansh. Okay. On next page, page number 31, there is a Ghiyazuddin Tughlaq, which was the period of this Ghiyazuddin Tughlaq, 1320 to 1324. Okay, 4 years only. Ghiyazuddin Tughlaq was the first ruler of this dynasty, and this Ghiyazuddin Tughlaq ये first ruler था तुगलक डिनेस्टी का. ओके. एंड यू नो स्टूडेंट्स, Ghiyazuddin Balban also there were. Okay. फ्रॉम स्लेव डिनेस्टी, स्लेव डिनेस्टी से Ghiyazuddin Balban भी थे. ओके. एंड दिस Ghiyazuddin Tughlaq also from Tughlaq dynasty. He strengthened the सल्तनत by crushing rebellions, and इन्होंने इनके सल्तनत स्ट्रॉन्ग बनाई. जो रिबेलियंस वहाँ पे होते थे, जो रिवॉल्ट्स वहाँ पे होते थे, ये क्रश करके. Jauna Khan, his son, succeeded him and was given the title of Muhammad bin Tughlaq. And Jauna Khan इनके बेटे थे, और after him this Ghiyazuddin Tughlaq given the title of Muhammad bin Tughlaq to this Jauna Khan. Okay. Now next is here Muhammad bin Tughlaq. What is the period of this Muhammad bin Tughlaq? What was the real name of this Muhammad bin Tughlaq? Jauna Khan. Okay. He was the son of Ghiyazuddin Tughlaq. And what was the period of this Muhammad bin Tughlaq? 1324 to 1351. Muhammad bin Tughlaq was a brilliant scholar and a great patron of learning. और ये बहुत ही brilliant थे मोहम्मद बिन तुगलक, एंड ही वॉज द ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग. बहुत ही ये लर्निंग को पसंद करते थे.
पैट्रॉन्स मीन्स फेवर में रहना, प्रोटेक्शन करना, पसंद करना. And he was the great patrons of learning. He was a genius, so much so that he was ahead of his times when it came to formulating policies. एंड उनके पीरियड में जब पॉलिसीज़ फॉर्म होती थी तो ये सबसे आगे रहते थे. ही वॉज अ नॉलेजेबल पर्सन्स एंड इन्हें बहुत सारा नॉलेज था. एंड वेल वर्स्ड इन एस्ट्रोनॉमी, पोएट्री, फिलोसॉफी एंड मैथमेटिक्स. और इन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज था, जैसे एस्ट्रोनॉमी, पोएट्री, फिलोसॉफी एंड मैथमेटिक्स. ओके. ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर. बहुत ही पावरफुल रूलर थे ये. ही हैड अ हाई सेंस ऑफ जस्टिस एंड हैड एन ओपन एंड प्रोग्रेसिव माइंड. बट ही मेड सर्टन मिस्टेक्स दैट टर्न अगेंस्ट हिम. और ये बहुत ही ब्रिलियंट रूलर थे, स्कॉलर रूलर थे, एंड ये लर्निंग को पैट्रॉन करते थे. एंड जो भी पॉलिसीज़ वहाँ पे फॉर्म होती थी उसमें ये आगे थे. इन्हें बहुत सारा नॉलेज था. ही हैड अ हाई सेंस ऑफ जस्टिस ऑल्सो एंड had an open and progressive mind also. इनका माइंड कैसे था? ओपन एंड प्रोग्रेसिव. ओके. बट ही मेड सर्टन मिस्टेक्स. इन्होंने कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे की थी, गलतियाँ की थी. ओके. एंड दैट टर्न अगेंस्ट हिम. ओके. जो मिस्टेक्स यहाँ पे हुई थी, इनसे यही मिस्टेक्स उनके अगेंस्ट आई थी. ओके. इब्न बटूटा, he was the writer, writes in detail about the rings of मोहम्मद बिन तुगलक. और इन्होंने ये जो इब्न बटूटा थे, राइटर थे, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य के बारे में कुछ लिखा है. रिंग्स मीन्स राज, जहाँ जो पीरियड था उनका रूलिंग पीरियड, उसे हम बोलेंगे रिंग्स. ओके. He tells us that the Sultan did not give overwhelming powers to the ulemas. और ये यहाँ पे कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने उलेमास को पावर नहीं दिए. उलेमाज मीन्स प्रीस्ट, पुजारी, भटजी इन मुस्लिम रिलीजन. ओके. इन फैक्ट ही क्वेश्चन द उलेमास. वो उलेमास को क्वेश्चन करते थे. ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट पीपल. और इन्होंने वहाँ पे ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे. लोगों में से ही उन्होंने कुछ ऑफिसर्स वहाँ पे अपॉइंट किए थे. हु डिड नॉट बिलोंग टू द नोबल फैमिलीज़. और ये जो ऑफिसर्स वहाँ पे अपॉइंट किए थे, ये नोबल फैमिलीज से नहीं थे. ओके. व्हाट इज़ दिस नोबल फैमिलीज़? Noble family means relative to the rulers. Means there were some powerful families during the medieval age. Okay. These powerful families, these powerful people were called the nobles, and generally ये rulers के relatives रहते थे. Okay. As a result, the sultan angered them and the ulemas turned against him. एंड ये जो सब करने की वजह से, कि जो नोबल्स फैमिली से इन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं किए थे, उनकी वजह से नोबल फैमिलीज इनके अगेंस्ट थी. और उलेमास को उन्होंने पावर नहीं थी दिए थे, उसकी वजह से उलेमास भी इनके अगेंस्ट आए थे. ओके. टैक्सेशन इन द डोब. नेक्स्ट मिस्टेक ऑफ दिस मोहम्मद बिन तुगलक was the taxation in the Doab. The Doab region was the most fertile region. and ये जो Doab region था, ये बहुत ही fertile region था. fertile, जहाँ पे बहुत सारे crops grow होते हैं. This area is called the fertile. Okay. Fertile region. तो which region was the fertile there? The Doab region. Okay. It yielded good quality crops. यहाँ पे अच्छे से crops होते थे, crops grow होते थे. Okay. The Sultan raised the land tax in the Doab region for increasing the revenue collection. और सुल्तान ने ये जो लैंड थी यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए. फॉर व्हाट? फॉर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू कलेक्शन. रेवेन्यू कलेक्शन इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे
टैक्स इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए. बट द टाइम वॉज नॉट राइट. जहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए गए थे वो टाइम करेक्ट नहीं था. ओके, इट वॉज द टाइम ऑफ सिवर फैमिन. और ये टाइम कैसा था? फैमिन का. यू नो फैमिन, अकाल, सूखा गिरना. ओके, the farmers were not in position to give such high revenues. और फार्मर्स हाई रेवेन्यू पे करने के पोजीशन में नहीं थे बिकॉज ऑफ दिस फैमिन. ओके, एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ peasants abandoned their lands and went elsewhere while some others revolted. एंड ये जो टैक्स यहाँ पे बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि कुछ फार्मर्स ने टैक्स लैंड छोड़ दी और वो वहाँ से निकल गए, और कुछ फार्मर्स ने यहाँ पे रिवॉल्ट किए, ये रूलर्स के अगेंस्ट गए. ओके, एज अ कॉन्सिक्वेंस द सुल्तान फाइनली डिसकंटिन्यूड द मेजर. एंड एंड में इन्होंने क्या किया? सुल्तान ने ये जो वहाँ पे टैक्स लगाए गए थे ये डिसकंटिन्यू कर दिए गए. ओके, मेजर मीन्स उपाय. देन shifting of the capital. Next mistake is here of the sultan, shifting of the capital. इन्होंने capital भी shift की थी. Another mistake was the sultan's decision to shift the capital from Delhi to Devgiri, which he renamed दौलताबाद. And next mistake कौन सी की यहाँ पे कि इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की. दिल्ली से इन्होंने कौन सी कैपिटल बनाई? देवगिरी. ओके, एंड देवगिरी का नेम क्या दिया? दौलताबाद इन 1327. ओके, इट वाज आल्सो रॉन्ग डिसीजन. द डिसीजन spelled out shifting of the royalty along with the common people, and this was not only impractical but highly expensive for the royal एग्जीक्यूटर. एंड ये जो डिसीजन था ये इम्प्रैक्टिकल था एंड हाईली एक्सपेंसिव था. बहुत ही यहाँ पे खर्चा आया था बिकॉज ऑफ फॉर शिफ्टिंग. ओके, that decision was very expensive and impractical also. okay, जो शिफ्टिंग का यहाँ पे डिसीजन लिया गया था, दिल्ली से देवगिरी को कैपिटल बनाई गई थी, तो ये डिसीजन बहुत ही इम्प्रैक्टिकल था एंड एक्सपेंसिव था, महंगा था. ओके, ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 32. दिस प्लेस हेल्ड अ सेंट्रल सिचुएशन being about equidistance from Delhi, Gujarat, Lucknow, Satgaon, Sunargaon, Telangana, Malabar, द्वारा समुद्रा एंड द कपिला. और ये जो प्लेस था जहाँ पे कैपिटल शिफ्ट की गई थी, तो ये प्लेस से सभी सिटीज़ का इक्वल डिस्टेंस था, इसलिए ये प्लेस यहाँ पे शिफ्ट की थी, कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट की थी. विदाउट सीकिंग एनी कंसल्टेशन फ्रॉम हिज नोबल्स एंड विदाउट केयरफुली लुकिंग इनटू द advantages and disadvantages, he brought ruin upon Delhi, which had grown in prosperity for 170 to 180 years and was compared to advanced city like Baghdad and Cairo. And ये जो यहाँ पे डिसीजन लिया गया था बाय सुल्तान, इन्होंने नोबल से यहाँ पे कंसल्टेशन नहीं किया था, नोबल से यहाँ पे पूछा नहीं था कि क्या करना है करके. कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो एडवाइज़र से एडवाइस ली जाती है. ओके, जो भी मिनिस्टर्स रहते हैं उनसे एडवाइस ली जाती है, तभी बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया जाता है. लेकिन यहाँ पे सुल्तान ने किसी को भी पूछा नहीं था, किसी से भी एडवाइस नहीं ली थी. विदाउट केयरफुली लुकिंग इनटू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और जो क्या एडवांटेजेस मिलने वाले हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं, ये केयरफुली न देखते हुए यहाँ पे डिसीजन लिया गया. एंड उन्होंने ये जो दिल्ली प्रॉस्परस सिटी थी 170 और 180 ईयर्स में इन्हें प्रॉस्पेरिटी मिली थी, रीच हुई थी ये जो दिल्ली सिटी थी,
तो ये अब र्यून बन चुकी थी। र्यून मीन्स खंडर बनना, खोखली बनना। ओके। एंड ये जो प्रॉस्परस सिटी थी ये किसे कंपेयर की जाती थी? कंपेयर टू एडवांस्ड सिटी लाइक बगदाद एंड कैरो। ओके। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, what prompted the sultan to take this step was the centralized location of Daulatabad and the threat of Mughal raid on Delhi. According to the historians, सुल्तान ने ये स्टेप, जो लोकेशन था दौलताबाद का, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन था, ये देख के लिया था। ओके। एंड द थ्रेट ऑफ मुगल रेड ऑन दिल्ली, और दिल्ली पे जो मुगल के अटैक होते थे, रेड होते थे, उसकी वजह से भी सुल्तान ने ये स्टेप लिया था कि दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करके दौलताबाद को बनाया था। However, he soon realized his mistakes as it was difficult to keep a vigil on the northern frontiers from the new capital, and ultimately he issued orders to reshift the capital to Delhi. And जैसे ही इन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई कि जो नदर्न फ्रंटियर से यहाँ पे न्यू कैपिटल से नज़र नहीं रखी जा सकती, इट वाज अ डिफ़िकल्ट, एंड वैसे ही उन्होंने ऑर्डर इशू की कि कैपिटल रीशिफ्ट करे। ओके। जो दौलताबाद कैपिटल बनाई थी, अब ये फिर से दिल्ली बने। ओके। देन next mistake was the introduction of token currency. The introduction of a new token currency was a Himalayan blunder committed by मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो न्यू टोकन करेंसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, इट वाज द हिमालयन ब्लंडर, मीन्स बहुत ही बड़ी मिस्टेक यहाँ पे सुल्तान ने की थी। द सुल्तान ऑन फाइंडिंग आउट दैट देर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन हिज किंगडम, और सुल्तान को ये पता चला कि किंगडम में सिल्वर का शॉर्टेज है, डिसाइडेड टू इशू ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स एज अ टोकन करेंसी इन 1329। और वहीं पे उन्होंने डिसाइड किया कि टोकन करेंसी ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स बनाई जाए। ओके। दिस कॉइन्स वर मिंटेड फॉर डे टू डे यूज़, और ये जो कॉइन्स बनाए गए, यहाँ पे मिंट किए गए, ये डे टू डे यूज़ के लिए बनाए गए। इन वैल्यू दिस कॉइन्स वर इक्वल टू द सिल्वर कॉइन्स विच वर कॉल्ड द तंकाज, और ये जो सिल्वर और कॉपर ब्रॉन्ज और कॉपर्स के कॉइन्स थे, इनकी वैल्यू सिल्वर कॉइन्स के समान ही थी, इक्वल थी। ओके। जिसे तंका कहा जाता था। विद दिस कॉपर and bronze coins, people could buy the same amount of wheat, rice or oil as they could buy with the silver tanka। और ये जो कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स थे, इसे लोग सेम थिंग्स खरीद सकते थे जैसे सिल्वर कॉइन्स से खरीदते थे। ओके। The Sultan issued the order that they could be exchanged for silver coins at any time from the royal treasury। और वहाँ पे ये भी ऑर्डर सुल्तान ने इशू की थी कि सिल्वर कॉइन्स एक्सचेंज कर सकते हैं रॉयल ट्रेजरी से। Realizing the value of gold and silver as much greater than the new tankas, people hoarded them। एंड जैसे ही लोगों को पता चला कि ये जो न्यू करेंसी है, न्यू टोकन करेंसी है, इसकी वैल्यू जो सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स है, इससे बहुत ही कम है, मीन्स जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स थे, इनकी वैल्यू न्यू तंका से बहुत ज़्यादा है। वैसे ही लोगों ने ये जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स थे, ये कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। hoarded means collected। ओके। दे यूज ओनली ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स फॉर ट्रेड, और ये ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स ही ट्रेड के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट दे रियलाइज्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ द कॉइन वॉज वेरी सिंपल एंड इट वॉज ईजी फॉर ऑर्डिनरी क्राफ्ट पर्सन टू कॉपी। एंड आगे चल के उन्हें ये लोगों को ये पता चला कि ये जो कॉइन यहाँ पे बनाए गए, ये बनाना बहुत ही ईजी है, जो ऑर्डिनरी क्राफ्ट पर्सन है ये भी इसको कॉपी कर सकता है।
people became dishonest and illegal minting of the coins started, which Muhammad bin Tughlaq failed to compress to begin with and later on failed to check it. एंड जैसे ही लोगों को पता चला कि ये हम घर में भी बना सकते हैं तो लोग डिसऑनेस्ट बन गए, ओके, बेईमान बन गए और वो वहाँ पे खुद ही मिंट करने लगे कॉइन्स को, ओके। As bronze and copper were cheaper than silver and easily available, people bought these metals in bulk and started minting coins even at home. और लोगों ने ब्रॉन्ज और कॉपर सस्ता होने की वजह से बहुत सारा वो लेके आए और घर में ही वो मिंट करने लगे, ओके। नाउ द फेक करेंसी वॉज इन द अबेंडेंस, और जो फेक करेंसी थी अब ये बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मनी लॉस्ट इट्स वैल्यू, और जो पैसों की वैल्यू थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रॉयल एंड द फेक कॉइन्स, और ये भी पहचानना डिफ़िकल्ट हो चुका था, जो डिफरेंट था दोनों में, फेक एंड रॉयल करेंसी में, ये इसका फ़र्क भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा था। ओवरसीज ट्रेड सफर्ड एज अ फॉरेन मर्चेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस कॉइन्स, और जो ओवरसीज ट्रेड्स थे ये अब यहाँ पे डिक्लाइन होने लगे थे। वाई? क्योंकि जो फॉरेन मर्चेंट्स थे ये जो करेंसी यहाँ पे थी ये एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज़ कर रहे थे। आफ्टर 3 years the Sultan realized the blunder he had committed and he withdrew the coins but promised to exchange the silver pieces for the bronze coins. People thronged in huge numbers and soon the treasury was depleted. और जब यहाँ पे सुल्तान को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई तब उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया कि वो सिल्वर कॉइन्स ब्रॉन्ज के बदले एक्सचेंज करके देंगे। एंड उसकी वजह से जो रॉयल ट्रेजरी थी, जो खजीना था, ये ख़त्म हो गया, ओके, खाली हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर कराचिल एक्सपेडिशन। मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू द कांगड़ा रीजन, मॉडर्न हिमाचल प्रदेश। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने कांगड़ा रीजन पे आर्मी सेंड की, ओके। कांगड़ा रीजन विच व्हाट इज दिस कांगड़ा रीजन? मॉडर्न हिमाचल प्रदेश। This was done to secure the northern frontiers of the Sultanate. This region was easily annexed by the army and then the army proceeded towards Tibet. एंड ये जो रीजन था कांगड़ा रीजन, ये इजीली कंट्रोल किया गया। एनेक्स मीन्स कंट्रोल करना, कब्जे में करना। एंड देन आर्मी प्रोसीडेड टूवर्ड्स द तिबेट, और उसके बाद आर्मी तिबेट की तरफ प्रोसीड हुई। But this decision proved to be fatal as it incurred heavy casualties and was extremely expensive. The royal treasury was in a state and bankruptcy. And again, this decision taken by the Sultan was wrong, proved to be fatal. Fatal means destructive, okay. And causalties means डिज़ास्टर, एक्सीडेंट, ओके। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, ये जो यहाँ पे डिसीजन लिया गया उसकी वजह से, ओके। विच वॉज द डिसीजन हियर कि पहले तो उन्होंने कांगड़ा रीजन कंट्रोल किया, उसके बाद जो भी एक्सपेडिशन था, जो भी कैंपेन्स था, आर्मी कैंपेन्स, ये तिबेट की तरफ चला गया, ओके। तो ये डिसीजन बहुत ही रॉन्ग था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ओके। एंड इट वाज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव ऑल्सो, ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, महंगा था, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन द रॉयल ट्रेजरी वाज इन अ स्टेट ऑफ बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी मीन्स दिवाला। जो भी रॉयल ट्रेजरी था, ट्रेजरी मीन्स खजीना, ये पूरा खाली हो चुका था, इसका दिवाला निकल चुका था, ओके। Then next Khurasan expedition. Expedition means journey, okay.
मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू कॉन्क्यूर खुरेसन इन सेंट्रल एशिया। अब यहाँ पे सुल्तान को क्या चाहिए था? खुरेसन रीजन वो कंट्रोल करना चाहते थे, कब्जे में करना चाहते थे, जो सेंट्रल एशिया में था। ओके, बट दिस एक्सपेडिशन रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपेंडिचर। एंड ये जो एक्सपेडिशन था, ये जो कैंपेन्स था, इसके लिए बहुत सारा प्लानिंग की ज़रूरत थी एंड बहुत सारा खर्चा भी यहाँ पे था। द सुल्तान रेज्ड अ ह्यूज आर्मी एंड इन्वेस्टेड अ lot in weapons and warfare supplies, as this would be long expeditions. एंड यहाँ पे क्या किया सुल्तान ने कि बहुत बड़ी ह्यूज आर्मी यहाँ पे कलेक्ट की। ओके, एंड बहुत सारे वेपन्स पे इन्वेस्टमेंट की गई, और जो भी वॉरफेयर सप्लाईज चाहिए था उस पर भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग एक्सपेडिशन था इसकी वजह से। नॉट ओनली दिस, द आर्मी कंप्राइजिंग सोल्जर्स वर ऑल्सो गिवन एन इंसेंटिव ऑफ 1 year's सैलरी इन एडवांस। एंड यहाँ पे सोल्जर्स को 1 year की सैलरी एडवांस में दे दी गई। सिर्फ इतना ही खर्चा नहीं किया, तो जो सोल्जर्स थे उनको 1 साल की पूरी सैलरी एडवांस में भी देनी पड़ी। But the expedition was withdrawn as the Sultan realized that it would be difficult to sustain a huge army in the foreign land. But ये जो एक्सपेडिशन था, ये जो कैंपेन्स था, ये विड्रॉन करना पड़ा। वाई? बिकॉज सुल्तान रियलाइज्ड दैट कि ये जो एक्सपेडिशन है, इसके लिए बहुत सारा खर्चा होने वाला है, और फॉरेन लैंड में, अदर कंट्रीज़ में बहुत बड़ी आर्मी को सस्टेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। ओके, द न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर्स वर डिसबैंडेड। और जो न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर्स थे, रिक्रूट मीन्स भर्ती करना। ओके, जो भर्ती हुए थे, एडमिट हुए थे सोल्जर्स, उन्हें डिसबैंड किया गया। All these hasty decisions to first attempt changes and later undo the same made the Sultan most unpopular, the military, the nobility and even the masses. और ये फालतू के जो भी डिसीजंस यहाँ पे सुल्तान ने लिए, एंड पहले उन्होंने अटेम्प्ट्स किए, फिर चेंज किए, एंड इसकी वजह से सुल्तान बहुत ही अनपॉपुलर बन गए थे मिलिट्री में, क्योंकि मिलिट्री में भी बहुत सारे डिसीजन उन्होंने पहले लिए, उसके बाद वो चेंज किए, उसकी वजह से मिलिट्री में भी ये अनपॉपुलर बने थे। नोबिलिटी, जो नोबल फैमिलीज थी, इनके डिसीजन भी ये अवॉइड करते थे, उसकी वजह से नोबिलिटी में भी ये अनपॉपुलर बनते गए, एंड इवन द मासेस ऑल्सो, मीन्स कॉमन लोगों में भी ये अनपॉपुलर बनते गए। द सुल्तान लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, और उन्होंने अपना जो भी क्रेडिट था ये यहाँ पे लॉस्ट किया था। ओके, Muhammad bin Tughlaq finally lost control of his empire as a revolts and rebellions shook different parts of the Sultanate. For example, Gujarat, Warangal and the Bengal. एंड ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने एंड में क्या हुआ कि उनका कंट्रोल उनके एम्पायर में से लॉस्ट हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। वाई? बिकॉज देयर वर many revolts and rebellions in different parts of the Sultanate. Means there were these rebellions, where were these revolts? Gujarat, Warangal and Bengal. Due to these, regional kingdoms came up in South India and Deccan, such as the Vijayanagar and the Bahmani kingdoms. And इसकी वजह से क्या हुआ कि साउथ इंडिया एंड डेक्कन में न्यू किंगडम एस्टाब्लिश होते गए। ओके, जैसे विजयनगर एंड द बहामनी किंगडम्स। Genghis Khan, the Mongol leader, invaded the territory of Delhi Sultan.
आफ्टर 1219 एंड ये जो जेंगिस खान थे मुगल लीडर, इन्होंने बहुत बार दिल्ली पे हमला किया था, अटैक किया था. आफ्टर द 1219 द मंगल अटैक्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द रिंग्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड द अलाउद्दीन खिलजी. एंड ये जो मंगलों के अटैक्स थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी के रिंग्स में ये इंक्रीज हो चुके थे, बढ़ चुके थे. ओके. फिरोज शाह तुगलक, नेक्स्ट रूलर वाज देयर फिरोज शाह तुगलक. व्हाट वाज द पीरियड ऑफ दिस फिरोज शाह तुगलक? 1351 to 1388. Okay. Firoz Shah Tughlaq came up to power, but unfortunately his reign was the beginning of the end. And ये जो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे इन्हें पावर मिले तब अनफॉर्चुनेटली मीन्स बदनसीबी से इनका जो रिंग्स था, इनका जो राज था, ये एंड होना स्टार्ट हो चुका था. द रॉयल ट्रेजरी वॉज बैंकरप्ट. और जो रॉयल ट्रेजरी था, जो खजीना था, ये इसका दिवाला निकल चुका था. द उलेमास एंड नोबिलिटी हैड टर्न हॉस्टाइल एंड रिवॉल्ट्स बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे. एंड जो उलेमाज थे, जो नोबिलिटी थी, ये रूलर्स के अगेंस्ट थे. ओके. उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे रिवोल्ट्स किए थे और ये दुश्मन बन चुके थे रूलर्स के. ओके. द न्यू सुल्तान लर्न मेनी लेसन्स फ्रॉम हिज कजिन मोहम्मद बिन तुगलक, सच एज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोबल्स एंड द उलेमाज. एंड ये जो न्यू सुल्तान यहाँ पे थे, फिरोज शाह तुगलक, ये बहुत सारे लेसन्स इन्होंने अपने कजिन मोहम्मद बिन तुगलक से पढ़े थे. which were the lessons among these importance of the nobles and ulemas. उलेमाज एंड नोबल्स का इम्पोर्टेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था. ओके. क्योंकि ये जो इनके पहले के रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने उलेमाज एंड नोबल्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था. उनके एडवाइस ये अवॉइड करते थे. ओके. एंड इसकी वजह से इन्हें अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा था. ओके. तो इससे ही ये जो न्यू रूलर थे फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने लेसन लिया था, ये कुछ यहाँ पे सीखे थे. ही प्लीज्ड द नोबल्स बाय गिविंग देम बिगर इक्ताज विच वर मेड हेरिडिटरी. एंड अब यहाँ पे इन्होंने न्यू सुल्तान ने क्या किया कि ये जो नोबल्स थे, उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा इक्ता देके मना लिया और ये हेरिडिटरी बन चुका था इक्ता. ओके. ही प्लीज्ड द उलेमास टू, और उन्होंने उलेमास को भी यहाँ पे मनाया. बाय रूलिंग अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉज. इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग ही रूल वो करना चाहते थे. ऐसे उन्होंने प्रॉमिस करके उलेमास को भी यहाँ पे मना लिया था. Now next topic is here reforms. Firoz Shah Tughlaq was very successful as a reformer. Reformer means समाज सुधारक. ओके. हम बोलेंगे इसे चेंज करना कुछ. ओके. चेंजेस. His reign saw the construction of many canals, wells, tanks, rest houses and hospitals. और इनका जो रिंग्स था, राज था, यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए थे. कैनल्स कंस्ट्रक्ट किए थे, वेल्स, टैंक्स, रेस्ट हाउसेस एंड हॉस्पिटल्स. ही ऑल्सो फाउंडेड सम न्यू टाउन्स सच एज द फिरोजपुर, फिरोजाबाद एंड द हिजार फिरोजा. एंड इन्होंने बहुत सारे न्यू टाउन्स भी यहाँ पे फाउंड किए थे. ओके. द सुल्तान इज़ द फेमस इन हिस्ट्री फॉर लाइंग गार्डन्स इन एंड अराउंड दिल्ली. एंड ये सुल्तान गार्डन फॉर्म करने के लिए भी फेमस है हिस्ट्री में. ओके. उन्होंने बहुत सारे गार्डन्स यहाँ पे बनाए थे दिल्ली एंड दिल्ली के आजू बाजू में. ओके. प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स वर ग्रोन एज द लेड 1200 गार्डन्स. और बहुत सारे ग्रेन्स यहाँ पे ग्रो होते थे एंड फ्रूट्स ऑल्सो. ही सेट अप मेनी
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सेट्स किए. ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर एंड लुक्ड इनटू द प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन ऑल स्पेयर्स. Hindu religious works were translated from Sanskrit to Persian during his reigns. और जो हिंदू रिलीजियस वर्क्स था ये भी यहाँ पे संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया. He also brought the two Ashoka pillars from Meerut and Sopara to Delhi. एंड इन्होंने टू अशोका पिलर्स भी मीरत से लाए थे, मीरत एंड सोपारा से दिल्ली. ओके, द टू पिलर्स वर केयरफुली wrapped in silk cotton cloth and rested one of them in his palace at Firozshah Khotla. आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह द एम्पायर ब्रोक अप. और ये जो फिरोज शाह थे इनकी डेथ के बाद ये इनका एम्पायर ख़त्म हो चुका था, ब्रोक हो चुका था. ओके, मेनी रिबेलियंस रोज आफ्टर हिज डेथ ड्यू टू विच मेनी रीजन्स बिकेम इंडिपेंडेंट. और बहुत सारे रिबेलियंस यहाँ पे हुए थे आफ्टर द डेथ ऑफ दिस फिरोज शाह तुगलक एंड बहुत सारे रीजन्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट बन चुके थे. His successors completely failed to control the slaves और the nobles. और इनके जो सक्सेसर थे, वारिस थे, ये स्लेव्स और नोबल्स को कंट्रोल करने में completely फेल हो चुके थे. The army had become weak. Slowly the sultanate was reduced to Delhi and the surrounding areas. और यहाँ पे आर्मी भी वीक बन चुकी थी and slowly this sultanate was reduced to Delhi and surrounding areas. Okay, now today's topic is completed here. You have to read the lessons and find the difficult words also from this lesson and search the meanings of these words in dictionary. Okay, have a good day.